Hello friends. In the last lecture, we have already seen the meaning of the width test and the identity test. And if the act, the 103rd Constitutional Amendment Act passed through the scrutiny of both the tests, so what the court is going to examine related to the act, what points the court is will examine, so that we have noted down. Now we will see whether this act is being complying with those whatever we have noted down. So whether the act is complying with the wit test or and identity test or not. So starting with the wit test, so I have already mentioned some of the points that in the wit test the court will examine all the provisions of the act, whether the all those provisions are complying to the provisions of the constitution and not against the provisions, and it is within the amending power and the procedure of the parliament or not. So the first provision is 10% quota to EWS. Okay, 10% quota. Now Parliament has enacted this provision by means of Constitutional Amendment Act. So by means of Constitutional Amendment Act, Parliament has enacted this provision. 10% quota जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया गया है. अब आप देखिए पार्लियामेंट ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास कराया है इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो अब क्योंकि to enact a constitutional amendment act is within the constitutional power of the parliament, it is being provided by the constitution, and by introducing this provision 10% quota to economically weaker sections, so parliament because has passed it by special majority, and plus Article 15 and 16 has already provide that state to for the advancement and for the progress of socially and educationally backward classes. So parliament can make provisions for the advancement and progress of those classes. So parliament can make provisions. That is Article 15, and Article 16 is Parliament can make provision for the reservation of seats, reservation of post and services for the socially backward classes if they are inadequately represented in the services of the state. So Parliament can so these articles basically give the power to Parliament to enact the reservation policy for the backward sections of the society. So that is why Parliament has enacted this 10% quota for EWS. So because it is in consonance with the constituent power of the Parliament, because it has been passed by the special majority, plus Article 15 and 16 has already provided to make special provisions for the advancement of backward classes. Therefore, if seeing from this angle, with test, the act seems to qualify this provision. This 10% quota seems to qualify the provisions of the constitution, or seems to qualify the width test. So we can say it is qualifying the width test. Have you understood how to see the qualification of the width test? So width test, it seems to qualify. Next point.
50% 50% quota, it exceeds 50% quota, है ना, 50% कोटा को एक्सीड कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं 50% कोटा जो है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कैपिंग 50% की रखी है। तो दिस इज अ मेजर इशू। अगर आप देखेंगे तो 50% कोटा की जो कैपिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस इन दी इंदिरा साहनी केस कि 50% कैपिंग होगी रिजर्वेशन की, so it is violating this provision of the constitution. Actually this is not the provision of the constitution, this is actually the law, because Supreme Court has declared it, so it becomes a law, but this is not a provision of the constitution. But as you think, but इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, 50% कैपिंग क्यों की थी सुप्रीम कोर्ट ने? 50% कैपिंग क्यों की थी? क्योंकि 50% कैपिंग रिजर्वेशन क्या होती है? It is a protective discrimination. Protective discrimination. तो रिजर्वेशन के माध्यम से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ग्रुप्स का, और कुछ ग्रुप्स को आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि उनका वेलफेयर और एडवांसमेंट और प्रोग्रेस की जा सके रिजर्वेशन के माध्यम से। 50% क्यों की? क्योंकि अगर 50% से एक्सीड कर जाती रिजर्वेशन, मान लीजिए 55% हो जाती, तो जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, सो दी राइट टू इक्वालिटी, जो हम राइट है इक्वालिटी का, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाती। क्योंकि इक्वालिटी एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इक्वालिटी, जो ऐसे सेक्शंस हैं जो कि दोज हु आर बैकवर्ड सेक्शंस शुड नॉट, so the reservation should not exceed more than 50% for those sections, vis-a-vis the sections which are not reserved, whom the seats are not reserved. So अगर ये 50% से exceed कर जाता है, अगर 50% से exceed कर जाता है, तो जो right to equality है वो कहीं ना कहीं violate हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो equality जो की गई थी, क्यों की गई थी equality? उसमें क्लासिफिकेशन की गई थी ताकि अनइक्वल्स को इक्वल्स के फुटिंग पे लेकर आया जा सके, टू बी एट पार, सो द अनइक्वल्स बी एट पार विद द इक्वल्स। तो अनइक्वल्स को इक्वल्स की फुटिंग पे लाने के लिए रिजर्वेशन किया गया है। अब क्या होता, अनइक्वल्स को इक्वल्स के पार पे लाने के लिए 50% दे दिया गया। अब मान लीजिए 55 हो जाता, तो जो इक्वल्स हैं वो डाउन हो जाते और अनइक्वल्स इक्वल्स हो जाते। इक्वल्स मतलब जो अपर, इसको आप ये मान लीजिए हायर प्रोग्रेसिव क्लास और इसको डाउन ट्रोडन क्लास, इसको 50% दे दिया गया रिजर्वेशन। तो अगर 55 दे जाता है तो ये डाउन ट्रोडन हो जाती और ये प्रोग्रेसिव हो जाती। तो करना क्या था कि जो अनइक्वल्स हैं उनको इक्वल्स की फुटिंग पे लाना है, जो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। एक लेवल है इक्वल्स का, उस लेवल पे अनइक्वल्स को लाना है जो कि इक्वल नहीं है। तो अनइक्वल को अगर ज्यादा दे देते तो वो इक्वल्स तो आ जाते, बट इक्वालिटी जो इक्वल्स की है वो अनइक्वालिटी हो जाती। तो इसलिए 50% जो रिजर्वेशन दिया गया था, इसलिए कैपिंग सुप्रीम कोर्ट ने 50% की थी। ये एक्सीड कर रहा है कोटा को, 50% कोटा को, तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी का प्रोविजन है उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये विल टेस्ट में फेल कर रहा है 50% कोटा को। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल एनालाइज एंड थिंक और इंटरप्रेट दिस पार्ट। बट मैं आपको समझाऊं तो आप समझ लीजिए कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी उसमें, जब हम इंटेलिजिबल डिफरेंशियल रेशनल नेक्सस देखेंगे, उसमें ये गड़बड़ करेगा। तो एक्सीड 50% कोटा में 50% कोटा को आप एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कानून है और कानून को आप वायलेट कर रहे हो। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में
वायलेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे तो एक्सेप्शनल कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, तो हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, अभी सिंपल करते हैं। ये एक्सीड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है एज पर एम नागराज केस, नोट एज पर इंदिरा सानी एंड कन्फर्म इन एम नागराज ऑल्सो 50% कोटा को इट इज एक्सीडिंग, तो इट इज वायलेटिंग दिस विड्थ टेस्ट। देन क्रीमी लेयर, ये एक्सक्लूड कर रहा है क्रीमी लेयर को। तो इसमें क्या है ना, क्रीमी लेयर का 8 लाख का प्रोविजन दिया गया है। अब 8 लाख का प्रोविजन आप जानते हैं कि ओबीसी को भी दिया गया है। So this 8 lakh provision which is being introduced in this amendment to define those sections of society who will not get the reservation benefit, 10% reservation benefit. So this provision is same as the provision which is the same provision which is there for the to have to put ceiling for the reservation of OBCs. So this is also a major issue because OBC reservation is actually related to so OBC is actually socially backward class. So with this having the creamy layer same as the creamy layer of OBC place the OBC on the same footing as the economically backward. So placing OBC other backward classes on the same footing as economic backward is maybe one of the issue, because as Supreme Court has said that reservation should be given to those people who who have been subjected to injustice and exploitation historic injustice and different forms of exploitation. So it is actually not economically, this reservation policy is to give them social justice so that they will also get the same opportunities and the in the environment, so that they can also come on the level which other sections of the society already are. So reservation is for socially backward classes. Now this economically backward is a new term in our constitution which was not earlier. So placing OBC on the same footing as economic backward, Supreme Court may think that it should not be there. So placing this creamy layer, placing the economic backward and OBCs on the same footing may cause any legal issue. Then fourth point, so it excludes OBC, SC and ST. So मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में OBC, SC, ST को एक्सक्लूड कर दिया गया 10%. तो इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड जो इन अब क्या है मैं आपको बताऊं, जो ये 50% जो ओपन मेरिट के बेस पे जो फाइट होता था उसमें 10% रिजर्वेशन डाल दिया है गवर्नमेंट ने, जो मेरिट के बेस पे था. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरिट कंप्रोमाइज हो रही है. और ये 50% में SC, ST और OBC भी करते थे, compete करते थे. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 10% में SC, ST और OBC को एक्सक्लूड कर दिया है. तो ये जो प्रोविजन है कि SC, ST और OBC को एक्सक्लूड कर देना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना, ये वायलेट करता है राइट ऑफ इक्वालिटी को. किसी को एक्सक्लूड कर देना, आप एक्सक्लूड अगर किसी को कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर आंसर फॉर दैट, एंड इट शुड बी इंटेलिजिबल एनफ. तो ये इंटेलिजेंट है या नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि किसी दो ग्रुप्स को आपने ले लिया, इसके अंदर इस ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया है, इस ग्रुप को इंक्लूड करना एंड इस ग्रुप को एक्सक्लूड करना, तो ये इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट मतलब रीजनेबल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रीजनेबल नहीं लगता, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज को इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, तो इट मे कॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को एक न्यू क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में, लाइक इंदिरा साहनी केस में या एम नागराज केस में कहा है कि बेसिकली क्लास बेस्ड किसी एक ग्रुप को ही आप दे सकते हो, you should give reservation to a group, and which group? The group which is subjected to grave injustice and oppression and exploitation. So आप किसी ग्रुप को ही दे सकते हो, किसी क्लास को दे सकते हो। तो आपको पता ही है, सोशली बैकवर्ड क्लास, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, है ना, एक ग्रुप को ही दे सकते हो। अब ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को इन्होंने क्लास बना दिया है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर आप देखोगे तो ये क्लास कहीं ना कहीं एक होमोजीनियस क्लास नहीं लगती। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड इज नॉट अ होमोजीनियस क्लास, जस्ट लाइक जो सोशली बैकवर्ड है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ टैक्स कितने लोग भरते हैं? बहुत कम लोग भरते हैं। आपको पता होगा 2 से 3% लोग केवल इनकम टैक्स फाइल करते हैं। आउट ऑफ 100%, ओनली 2 to 3% पीपल, citizens of India file income tax. So such is the state of the tax, filing the tax and benefiting the society। मतलब एक तरह से टैक्स फाइल करते हैं अगर आप, तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि इनकम इतनी कम है लोगों की। तो आप देखिए अगर आप देखेंगे तो 50% कहते हैं ओबीसी की पॉपुलेशन है, 15% 7% SC ST की, तो अराउंड 25% पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ 25% विल कम इन दिस 10%। सारे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आ जाएंगे अगर आप देखेंगे, तो कोई बचेगा ही नहीं। जितने भी बचे हैं लोग अगर आप देखें तो सारे रिजर्वेशन में ही आ गए। तो रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट ही नहीं है। रिजर्वेशन का बेनिफिट है कि किसी एक होमोजीनियस क्लास जो कि इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन जिसके साथ हुआ है उसको आप रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन दो, क्यों दो? ताकि वो उस फुटिंग पे आ पाए, उस स्केल पे आ पाए, ताकि अनइक्वल्स इक्वल्स के लेवल पे पहुंच पाए। तो अभी तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दिया, प्रोटेक्शन दिया उनको कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अभी अगर आप देखेंगे तो सारे लोग जो बचे हैं वो इस रिजर्वेशन के अंतर्गत लगभग सारे आ जाएंगे। तो जो 40% है वो अनरिजर्व्ड है, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। जब सारे उसके अंदर आ रहे हैं 10% के अंदर तो सारे फाइट करेंगे 10% की रिजर्वेशन के लिए। बट रिजर्वेशन तो कुछ लोगों के लिए होना चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मुझे लगता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक होमोजीनियस क्लास नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इंडिविजुअल बेसिस है। क्योंकि लोग आप जानते ही हैं फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं और काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना और ये सब अपने आप इनकम वगैरह दिखाना। लोग इनकम कैसे दिखाते हैं, कितना यहाँ पे ब्लैक, कितना मतलब कैश में सब डीलिंग्स होती हैं। बिजनेस छोटे छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स वगैरह हैं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता है और कोई भी अपना वो नहीं दिखाता है, मतलब इनकम नहीं दिखाता है, शो करते हैं, तो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड इज नॉट अ होमोजीनियस क्लास, ये इट्स अ हेट्रोजीनियस क्लास। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिविजुअल बेसिस पे हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल
अपनी इनकम शो कर देगा उसको मिल जाएगा। तो जो अभी तक क्लास बेस्ड मिलता था रिजर्वेशन, वो इंडिविजुअल बेस्ड हो जाएगा। सो रिजर्वेशन जो क्लास बेस्ड था दैट विल बी इंडिविजुअल बेस्ड। तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखता है वो देखना पड़ेगा, बट ये भी एक मेजर इशू है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। देन जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि बैकवर्डनेस शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, डेटा ऐसा लाना पड़ेगा टू शो बैकवर्डनेस इन लोगों की। कैसे शो करेंगे बैकवर्डनेस? कोई कम्युनिटी तो है ही नहीं, मैंने बोला होमोजीनियस, बहुत मुश्किल है। देन इनएडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज वो शो करना पड़ेगा डेटा। ऐसा तो नहीं लगता है कि इनएडिक्वेसी है इनकी। या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे बरकरार रखोगे एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब शो करना पड़ेगा। इसके लिए डेटा शो करना पड़ेगा, ये सब के लिए डेटा। और एफिशिएंसी कैसे शो करेगी गवर्नमेंट, पता नहीं। एंड ये तो मैंडेटरी है, जर्नैल सिंह में तो ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन बैकवर्डनेस शो नहीं कर पाओगे तो भी आप इनएडिक्वेसी एंड एफिशिएंसी तो आपको बताना पड़ेगा। और एफिशिएंसी आप मेंटेन कैसे करोगे? आपने 10% में भी सब लोग कवर कर दिए, सब तो रिजर्वेशन में कवर हो गए, तो मेरिट के बेस पे कहाँ लड़ेंगे लोग? मेरिट तो खत्म कर दी ना आपने। रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए था, उसके बजाय रिजर्वेशन खत्म मतलब रिजर्वेशन नीडी लोगों को देना चाहिए था। इसके बजाय रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है देश में। ठीक है, ये तो विड टेस्ट हो गया। अब हम आइडेंटिटी टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने आइडेंटिटी टेस्ट बताया था कि एक तो फॉर्मल इक्वालिटी और एक सब्सटैंटिव। तो फॉर्मल इक्वालिटी क्या है बेसिकली कि ये डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है। फॉर्मल इक्वालिटी देखा जाएगा इसमें कि दिस एक्ट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं लगता है। ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आपको रिजर्वेशन देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन बेस पे मुस्लिम्स भी इसमें कवर हो जाएंगे रिजर्वेशन में। तो कोई रिलीजन बेस पे नहीं है, रेस पे नहीं है, कास्ट पे नहीं है, सेक्स पे नहीं है और प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फॉर्मल इक्वालिटी इट इज क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग हम लिख देते हैं क्वालिफाइंग। ना सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी मैंने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आपने रिजर्वेशन दिया है, कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो हम देखते हैं सब्सटैंटिव। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है अनइक्वल्स को इक्वल्स पे लाने के लिए, दैट इज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी अमंग दोज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन दोज हु आर डाउन ट्रोडन। तो उनके लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो हम इसको देखते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी को ये क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम केस एक्चुअली, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं बताऊंगा अभी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, अब सब्सटैंटिव इक्वालिटी में जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें एक तो है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड देन रेशनल नेक्सस। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया देखते हैं, यानी कि जो आपने एक ग्रुप को डिफरेंशिएट किया है अदर ग्रुप से, दैट इज रीजनेबल, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है ना, वो जो डिफरेंशिएशन किया गया है। अब ये जो डिफरेंशिएशन किया गया अगर आप देखेंगे ग्रुप का, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब जिनके पास पैसे की कमी है उनको आपने रिजर्वेशन देने की कोशिश की है। अब इसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आपने एक ग्रुप बना दिया, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि दैट इज ए होमोजीनियस ग्रुप। लेकिन लगता नहीं है कि ये प्रूव हो पाएगा कि इट इज अ ग्रुप।
ये इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा लगता है. That is not socially and educationally backward. They are not subjected to injustice and exploitation. Historical injustice and exploitation. So ये जो डिफ्रेंसिएशन किया है ये कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा है the article 14, that is the equal protection, the equality before law. So basically अगर आप देखेंगे, so this amendment basically it gives or it provides unequal treatment to economically backward classes, economically backward people, sections. तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को अनइक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है टू ब्रिंग देम ऑन द सेम फुटिंग. तो ये कहीं ना कहीं कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे SC ST OBC जिसमें भी पुअर है. तो एक बहुत बड़ा इशू ये हो सकता है कि एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को ये वॉलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं नेगेट कर रहा है. और इसमें एक इशू और है कि अगर आप इस तरीके से आपने उनके पुअर के लिए किया है तो ये SC ST OBC अपने पुअर के लिए मांग सकते हैं कि उसमें जो पुअर है वो मांग सकते हैं कि हमें भी सब कोटा दिया जाए. तो एक ये डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है, क्योंकि फिर वो जो पुअर है वो उसमें अंदर सब कोटा मांगेंगे. तो जो डिफरेंशिएशन है डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है. एंड रेशनल एक्सेस क्या है? रेशनल एक्सेस ये है कि इससे अचीव क्या करना चाहते हैं ये, इनका प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है और इससे जो अचीव करना चाहते हैं प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट, तो ये क्या क्लासिफिकेशन करने से प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट अचीव हो पाएगा? तो अगर आप देखेंगे तो ये रेशनल नेक्सस, ये जो राइट टू इक्वालिटी, रेशनल नेक्सस जो रेशनल नेक्सस जो देखना, सो रेशनल नेक्सस में क्या है कि इनके प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन लेके आ रही है. तो गवर्नमेंट तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन से डेफिनेटली प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट हो रहा है. एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है ये रिजर्वेशन. तो इकोनॉमिक तो बेसिकली सोशली को इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी बेसिकली, क्योंकि वो ग्रेव इनजस्टिस का शिकार थे. उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी और रिसोर्सेज नहीं थे. बट ये जो इकोनॉमिकली डाउनट्रोडन लोग बोल रहे हैं, सो देयर अपलिफ्टमेंट कैन बी डन बाय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. रिजर्वेशन की क्या जरूरत है इनके लिए? तो प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट क्या हो पाएगा इससे, रिजर्वेशन से? तो रेशनल एक्सेस भी कहीं ना कहीं वॉयलेट होता नजर आ रहा है. तो ये दोनों जो ये राइट टू इक्वालिटी वाला जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है ये अमेंडमेंट. तो इट मे बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वायलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी. अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट्स और है विच आई वांट टू टेल टू यू. इसमें इन्होंने क्या किया है जो मैंने आपको बताया था. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए भी 8 लाख का है लिमिट, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी इन्होंने 8 लाख की लिमिट रखी है. तो और ये दोनों अनइक्वल्स हैं, बोथ आर अनइक्वल्स. सो क्योंकि दोनों को अलग अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं, सो ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स. तो ये क्या कर रहे हैं, अनइक्वल्स को इक्वल की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. और ट्रीटिंग इक्वल्स एज अनइक्वल्स इज वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी. भाई इक्वल्स को आप अनइक्वल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, और अनइक्वल्स को इक्वल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. दोनों को क्लासिफाई करना पड़ेगा आपको. दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. तो इसको भी ये वायलेट कर रहा है, जिसको मैंने बोला था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए. तो कहीं ना कहीं देखें तो आइडेंटिटी टेस्ट को ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी टेस्ट मैंने आपको बताया कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है ये सब्सटेंटिव एंड फॉर्मल इक्वालिटी. अब मैं आपको बताऊं फॉर्मल इक्वालिटी जो है, मैंने बताया कि फॉर्मल इक्वालिटी सिंपल की प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है. प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को वायलेट, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो फॉर्मल इक्वालिटी तो डेफिनेटली कर रहा है, बस सब्सटेंटिव इक्वालिटी को भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटरी है
एंड रेशनल एक्सेस डिस्क्रिमिनेटरी है, दैट इज नॉट रीजनेबल। तो रीजनेबिलिटी फेयरनेस को ये वायलेट कर रहा है। तो फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी के अंदर जो हार्मोनी होनी चाहिए उसको भी ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि फॉर्मल इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब सब्सटैंटिव इक्वालिटी होगी। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब ऑल सेक्शंस आर ऑन द सेम फुटिंग, तो वो होने के लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए। सब्सटैंटिव इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है तो ये फॉर्मल इक्वालिटी को भी कहा जाए वायलेट करेगा। अच्छा, वन मोर पॉइंट आई मिस्ड, दैट इज राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोशल बैकवर्डनेस है जरूरी नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड ही हो, मतलब सोशल डेफिशिएंसी हो, जरूरी नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड ही हो, कि कोई एक बैकवर्ड कास्ट है, कोई फॉरवर्ड कास्ट है। तो क्योंकि ये डायनेमिक है, सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज डायनेमिक, लाइक कि जो डेफिशिएंसीज हैं ये इट कैन बी, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट में हो। तो जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, दे कैन ऑल्सो कैन बी बैकवर्ड, ठीक है, और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये बात कि तो जरूरी नहीं है कि कास्ट बेस्ड ही बैकवर्डनेस हो, it can be there are different criteria also to determine the backwardness, because it is a dynamic factor and it may present in different communities and different sections. So caste based reservation ही होना जरूरी नहीं है। So deficiency may present in any form in the society. तो अभी तक क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो होंगे दे विल बी गिवन रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मंडल कमीशन ने ये स्टडी किया था 1972 में, नॉट इन 1978, सॉरी 1992 में फाइनली लागू हुआ था ये, मतलब लागू तो पहले हो गया था, पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको अपराइट एंड वैलिड घोषित कर दिया था। तो इन्होंने स्टडी किया था और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो ऐसी कम्युनिटीज निकाली थी जिनकी फिर जिनकी कास्ट आइडेंटिफाई की गई और वो ओबीसीज में डाल दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो कास्ट डाल दी गई, ठीक है। तो दो सेक्शंस विच आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। अच्छा, ठीक है, तो अभी तक यही होता आया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को ही बैकवर्ड माना जाता था, जो कि इसमें नई परिभाषा इकोनॉमिकली बैकवर्ड की दी गई है, जो कि थी पहले भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पहले भी थे जो मंडल कमीशन ने लिया था, बट वो ओबीसी के अंदर इन्होंने ले लिए थे उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, जो देखा गया कि जहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस देखी गई। तो इन्होंने पैरामीटर लिए थे 2, आई थिंक 3:2:1, तो ये सोशली बैकवर्ड का, 2 एजुकेशनली एंड 1 इज फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, और तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था, और एक आर्टिकल 46 है जो बेसिकली इन्होंने कोट किया है, जो मैं बताना भूल गया था आपको, आर्टिकल 46। सो आर्टिकल 46 इज द एनेबलिंग प्रोविजन। तो इसमें ये बोला गया है कि द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of weaker sections of society, including SC and STs, and prevent them from social injustice and exploitation। ठीक है ना। तो इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट पास किया, 103rd अमेंडमेंट। स्टेट क्योंकि यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है वीकर सेक्शंस का, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन ही एक पॉलिसी होगी, ये गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एफिशिएंसी भी देखनी है, बैकवर्डनेस भी इनकी देखनी पड़ेगी, और बैकवर्डनेस की डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पास की है इन इंदिरा साहनी केस, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली।
अब देखने वाली बात होगी क्या इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एक अलग एक जो टर्म है उसको सुप्रीम कोर्ट पास करता है नहीं करता है। तो डिटेल में मैंने लेक्चर आपसे डिस्कस किया ये कंसेप्ट, ये एक्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। With this I end my lecture here. If you like my lecture, kindly press the like button and do subscribe my channel for more such educational and interesting lectures on different diverse topics such as polity, economy, and environment, and so on. Thank you.